سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ ہر وقت میں آپ لوگوں کو زحمت دیتا ہوں. آپ بھی اپنی کوششوں سے اس زحمت کو جو ہے نا آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن مجبوری یا بدنصیبی یہ کہ آپ کی زحمت راستے میں ہمارے بلوچستان کے بارڈر میں رک جاتی ہے. تو ایک بار پھر آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے شارٹ نوٹس پہ یہاں پر اکٹھے ہوئے. میرے خیال میں آج ایک ہمارے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیے ایک یہ نہایت ہی خوشی کا لمحہ ہے کہ محترمہ نسیمہ احسان شاہ کی شکل میں جو پہلے بھی اس ملک کے پارلیمنٹ میں سینٹ کا حصہ رہ چکی ہیں, سینیٹر رہ چکی ہیں, آج انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا جو اعلان کیا. میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی تمام قیادت کی طرف سے ان کو بلوچستان نیشنل پارٹی میں ویلکم کرتا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سیاست وہ آج کی سیاست نہیں. جس وقت سے بلوچستان میں سیاست کا آغاز ہوا ہے, مختلف اشکال میں قوم پرستانہ سیاست میں بلوچستان کے لوگوں کا ایک صف اول کا رول رہا ہے. یہ تسلسل عثمان گل سے لے کر نیشنل عوامی پارٹی, نیشنل عوامی پارٹی کے بعد بی این ایم سے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی, اور اس جدوجہد میں ہم نے سیاست میں بہت کچھ حاصل کیا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سیاسی جدوجہد میں ہم نے بہت کچھ بھی کھویا. ہمارے دینی ساتھی ہم سے جدا کر دیے گئے, ہمارے ساتھیوں کو اس ملک کے عقوبت خانوں کی نظر کر دیا گیا, ہمیں سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی. وہ ملک جس کو اسلامک ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان کہا جاتا ہے, جس میں ڈیموکریسی کا نام آتا ہے, اس ڈیموکریٹک پروسیس سے ہمیں ہر بار دور ہٹانے کی کوشش کی گئی. جب بھی ہم نے آئین کی پاسداری کی بات کی, جب بھی ہم نے بلوچستان کے جمع حقوق کی بات کی, ہمیں اس کے بدلے میں لاشوں کے تحفے دیے گئے یا اس کے بدلے میں ہمارے اکابرین کو پابند سلاسل کیا گیا. آج بھی بلوچستان کا کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں پر اس جدوجہد کے نتیجے میں ہمارے یا بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کوئی اور پارٹیوں کے کارکنان کے جو ہے قبرستان نہ ہوں, لیکن آفرین نے اس پولیٹیکل ورکروں کو ان 72 سالوں کی آزمائشوں کے بعد, اس 72 سالوں کی ظلم و زیادتیوں کے بعد بھی انہوں نے نہ کہ صرف جمہوریت کا علم بلند رکھا, لیکن بلوچستان کے حقوق کا علم بلوچستان کی سڑکوں پر ان شاہراہوں سے لے کر پاکستان کے ایوانوں تک پہنچایا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی حالت, ملک کی صورتحال کا اندازہ آپ کو خود ہے کہ لوگ نان شبینہ سے محتاج ہیں. مہنگائی, میرے خیال میں اس کو مہنگائی کا نام نہ دیا جائے کیونکہ مہنگائی ایک پرانا لفظ ہو گیا ہے. اس کے لیے تو ہمیں کوئی ایک عجیب سا لفظ ڈھونڈنا ہوگا جو روز بروز مہنگائی آپ کو کسی حد تک جا کے پریشان کرتی ہے, لیکن اس ملک کی مہنگائی آپ کو کفن پہنانے تک بھی مجبور کرتی ہے. اور ہمارے ملک کے حکمران اپنی حکمرانی کے علاوہ ان کو جو ہے اس ملک کی عوام کے لیے قطعاً کوئی دلچسپی انہوں نے آج تک نہیں دکھائی. اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ ہر روز آئینی ترامیم کرتے ہیں, وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بیرون ملک سے ان قرضوں کو ختم کرنے کے لیے, ان قرضوں کے سود سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مزید قرضوں کا بوجھ اس عوام پر ڈالتے ہیں. لیکن نہ ہی مہنگائی سے ان کو نجات ملتی ہے اور نہ ہی اس بڑی رقم سے جو امن امان کے سلسلے میں جو خرچ ہوتی ہے. آج بلوچستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. اسی کوئٹے کے نزدیک کئی دنوں تک لوگ اپنی لاشوں
को रखकर एहतजाज कर रहे थे, उनका कोई प्रोत्साहन हाल नहीं हुआ। वजीर आजम को आने में दिक्कत हुई, हफ्तों तक यहाँ पर लोग अपने प्यारों की लाशें रखे हुए थे। यहाँ पर मिसिंग पर्सन्स का मसला हल होने के बजाय मजीद उसमें इजाफा हो रहा है। ये वो खित्ता है जहां पर इज्तिमाई कब्रें मिली हैं, लेकिन आज तक इस मुल्क के हुक्मरान, इस मुल्क के कानून के रखवाले, इस मुल्क के आइन के पासबान जो हैं, हमें इस बात की तसल्ली नहीं दे सके कि इन कत्ल आम के पीछे अगर हाथ है तो किसका है। ये किसी कुदरती आफत से तो हलाक नहीं हुए हैं, इनकी अमवात कुदरती नहीं थी, इनके पीछे कोई शख्स होगा, कोई इदारा होगा, कोई तंजीम होगी, कोई ग्रुप होगा। क्या आज तक आप मीडिया वालों के सामने उस ग्रुप का, उस शख्स की या उस तंजीम की कोई शक्ल आपको दिखाई गई? नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने उनको भी अपनी तरह सुलेमानी टोपी पहनाई हुई है, जो ना आपको दिखते हैं, जो ना हमें दिखते हैं, जिनको कहा जाता है नामालूम है, और हमको मालूम है ये नामालूम कौन है। आज कुछ ही दिन पहले हुकूमत के इत्यादि जमात के रहनुमा के रिश्तेदार को कई महीने अगवा किया गया, 5 महीने के बाद जो है उसकी लाश बरामद होती है। और अफसोस करने के बजाय हम और आप तो अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। न ही कातिलों तक पहुंच सकती है, न ही कातिलों तक सजा तो अपनी जगह पर, जब वो पहुंच ही नहीं सकेंगे तो इसका मतलब कि वो कातिल इतने ताकतवर हैं जिन पर हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती। उन कातिलों की गर्दनें इतनी मजबूत हैं कि जिसमें ना फंदा आ सकता है, ना ही जिसमें हमारी जो इंतजामिया है उसका हाथ आ सकता है। तो इस सिनारियो से निकलने के लिए हम समझते हैं यहाँ पर जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टी का आना जरूरी है। यहाँ पर खलाई मखलूकों के जरिए से जो पॉलिटिकल पार्टियां बनाई जाती हैं, जो एक दिन में पार्टी बनती है और 1 महीने के अंदर वो इलेक्शन, हमने आप खुद गवाह इस बात की। मैं जब शुरू में सियासत में आया था उस वक्त की मेरी तस्वीर देखें और आज की तस्वीर देखें, आज तो मैं दादा की शक्ल का हो गया हूं। लेकिन और एक दिन में लोगों को जो है बैठे बैठे बाप मिल जाता है, और वो बाप एक अक्सरियती पार्टी बनकर आ जाते हैं। और आज उसकी हालत देखें आप, आज उसकी हालत यह है, ना बाप को पता है कि बच्चे किसके हैं, ना बच्चों को पता है कि उनका बाप कौन है। जो नया आ जाता है उसी को वो अपना बाप कहलाते हैं। तो आखिर में मैं फिर मोहतरमा को जो है इस बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद देता हूं और उनको वेलकम करता हूं। और कोई आपका सवाल? सरदार साहब, बहुत कम वक्त रह गया, 24 घंटे से भी कम। क्या वजह है कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है अब तक अपने कैंडिडेट्स अनाउंस उसने नहीं किए या दस्तबरदार नहीं करवाए? सिंध असम्बली में 3 MPs को अगवा करने का इल्जाम लगा है, यहाँ भी कोई अगवा या सरप्राइज या अपसेट तो नहीं होगा? देखिए, सिंध में तो भाई MPs को अगवा किया जाता है, हमारे यहाँ तो औरतों को नहीं बख्शा जाता, बुजुर्गों को बख्शा नहीं जाता, बच्चों को बख्शा नहीं जाता। तो हम भी अपनी एहतियात कर रहे हैं। अल्लाह, हमने पहले भी अल्लाह की भरोसे पर ये सियासत की है, अभी भी अल्लाह के भरोसे पर ये सियासत कर रहे हैं। और अपोजिशन ने हमेशा सरप्राइज दिया है। 24 घंटे बचे हुए, इंशाल्लाह 24 घंटे के बाद जो है ना, जो धमाका होगा वो आप 28 मई को भी भूल जाएंगे। इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं है, जल्द आएगा इंशाल्लाह। वो अभी हम पार्टी की जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो बैठ के इसका अभी जल्द फैसला करेगी। लोग भी आपसे मिले हैं, कैबिनेट से भी मुलाकात हुई, दूसरों से कोई पेशरफ्त हुई या वही डेडलॉक की सूरत है? यार, मैं खुद हैरान हूँ कि मैं जब आता हूँ हुकूमत परेशान भी होती है, लेकिन आज इस बार पहला मरला आया है कि हुकूमत
जो है हमसे मुलाकात करती है, लेकिन ज़ाहिर है उस तरफ भी लोग सियासी हैं, हम भी सियासी लोग हैं। बात हुई है लेकिन बात किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंची। जाम साहब ने आपको फोन किए थे, फोन पे क्या बात हुई और किस हवाले से, सेनेट के हवाले से बात हुई? नहीं यार, उसको पता नहीं किसी ने बता दिया कि ये पागल तुम्हारा रिश्तेदार है, उसको फिर याद आया। नहीं, इंशाल्लाह मुलाकातें जिनसे हुई है हमारी, उसका नतीजा कल 5 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। सीटों की जो तकसीम है अपोजिशन के हवाले से, जिस तरह आपने 5 सीटों की डिमांड की और कहा कि वो हुकूमत जो है 7 नशिस्तों पर आया और आप 5, तो ये 5 का फार्मूला अपोजिशन के दरमियान कैसे तय होगा? नहीं, वो देखिए, हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है। अपोजिशन इख्तिदार की भूखी नहीं है। इख्तिदार की भूखी होती तो हम अपोजिशन के कई कब के जो है वहां पर बैठे होते। हम नजरियाती लोग हैं, हम सियासी लोग हैं और हमारे दरमियान इंशाल्लाह सीटें जो है मसला नहीं है। हमारा मसला जो है इस मुल्क में आइन की बालादस्ती, कौमों के जो है बराबरी की बुनियाद पर उनकी हुकूक की तस्लीमी, ये हमारा मसला है। सरदार साहब, कल 7-5 होगा, 6-6 होगा, 9-3 होगा, क्या होगा? यार, वो एक बंदा गया किसी नाई के पास, कहा कि जी मेरे सर पे सफेद बाल कितने हैं? कहता थोड़ी देर इंतजार करो, जब जोली में गिर जाएंगे गिन लेना। कल गिरने लगा। सरदार साहब, आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो जो पोजीशन बन रही है, आप क्या कहते हैं कि आप लोग हुकूमत को हरा देंगे? क्या सिचुएशन बन रही है? देखिए, जीतना और हराना जो हारना वो खुदा के हाथ में है, लेकिन हुकूमत ने जो काम किए हैं मुझे नहीं लगता उसके नसीब में अब जीत है। भाई, मैंने बोला ना, आप कल देख लेंगे। सिर्फ एहसान शाह नहीं, और बहुत से लोग होंगे जो आपको कल सरप्राइज मिल जाएगा इंशाल्लाह। सरदार साहब, पंजाब असम्बली में बिला मुकाबला मुंतखब होना, हमजा शहबाज की जमानत होना, उसको आप किस तरह? बहुत अच्छा फैसला हुआ है और मैं समझता हूँ हमजा शहबाज शरीफ की जो रिहाई है, आज साबित हो गया ना कि वो उसको गलत हथकंडों के जरिए से उन्होंने गिरफ्तार किया है। और जो भी किसी भी, चाहे नैब है या नैब के जो एहलकार हैं या हुकूमत है, तो ये बात तो साबित हो गई कि कई अरसे से उसको जो कैदोबंद में रखा गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत अपने मुखालफिन को या अपने हरीफियों को झुकाने के लिए ये इस मुल्क का हमेशा वतीरा रहा है और इस मुल्क के उसको जो है इन हथकंडों को इस मुल्क के खमीर में शामिल किया गया है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि ऐसी वाकयात को जो इस मुल्क के खमीर से निकाल दें। नहीं, मुझे नहीं लगता हक पे जिसको अगर बेगुनाह गिरफ्तार किया गया है, अगर रिहा कर दिया गया है, अदालत से रिहाई मिली है ना उनको, तो अदालतों ने, आप अगर कहते हैं अदालत ने अगर डील कराई तो आप कहते हैं, मैं नहीं कहता। इमरान खान के आपके लांग मार्च से कबल अगर हुकूमत की तरफ से आपको एक दफा फिर मुज़ाकरात की पेशकश करेंगे या अब भी आप वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे पे ही पीडीएम खड़ी है? किसके साथ मुज़ाकरात? वफाकी हुकूमत के साथ। अगर आपको लांग मार्च से पहले वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात की दावत देती है तो मुज़ाकरात होंगे या इमरान खान का इस्तीफा ही होगा? वो कहते हैं छोड़ आए हम वो गलियां। देखें, जो पोजीशन जो वाज़ेह नजर आ रही है, मेरे ख्याल में शेख साहब बोरिया बिस्तर उसका गोल हो गया है। थैंक यू।